Today we are going to see the disposal of non-current asset. The most important part of this chapter. Here you are not purchasing the asset, but you are selling it. So whenever you sell a non-current asset, you need to open a separate account called disposal account. When non-current assets are sold, then a new account is open, then a separate account is open called disposal account. Disposal account. Following are the double entries of disposal account. Entry number 1, disposal debit, asset credit. For example, आप कोई मशीन बेच रहे हो तो मशीन जा रही होगी, that machine should have been credit. Machine should have been credit. Or furniture is selling out, so furniture should be credit. Second entry, accumulated depreciation debit and disposal account credit. All entries are transferred to disposal account at the time of sale of non-current asset. Whenever you have an asset has two accounts. Number 1 is own account, number 3 is depreciation account. जब एसेट जा रहा होगा तो एसेट हट जाएगा, एसेट निकल जाएगा एसेट अकाउंट से भी और डेप्रिसिएशन अकाउंट से भी. इंशाल्लाह विल सी टू इट. सर मैं एसेट बेच रहा हूं तो मेरे पास कैश आएगा, कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट. अब हम एसेट को बेच रहे हैं, एसेट आ नहीं रहा बल्कि एसेट जा रहा है. एसेट जाएगा तो कैश आएगा, कैश डेबिट होगा. The fourth entry is very interesting entry, that may be the entry of loss or for the entry of gain. It may be a profit or a loss. It may be a profit or a loss. Sir, अगर loss हुआ तो income statement debit, disposal credit, income statement debit. हर नुकसान से income statement debit होता है. और अगर गेन हुआ तो disposal debit, income statement credit, disposal debit, income statement credit. These are the entries of loss or a gain. This is the fourth entry. जाहिर है एक वक्त में या तो लॉस होगा या फिर गेन होगा, दोनों चीजें एक साथ थोड़ी हो जाएंगी. आप अपनी पुरानी गाड़ी बेच रहे हो, उसमें या तो आपको फायदा होगा या नुकसान होगा. आप अपना पुराना फर्नीचर बेच रहे हो, या तो फायदा होगा या फिर नुकसान होगा. पुरानी हम बिल्डिंग हम अपनी बेच रहे हैं, फायदा होगा या फिर नुकसान होगा. इट मे बी अ लॉस और अ गेन. ऑलराइट, सो देयर आर 4 entries. There are total 4 entries. Number 1, disposal debit, asset credit. Number 2, accumulation debit, disposal credit. Number 3, cash debit, disposal credit. Number 4, loss or gain. Loss or gain. Loss or gain. Income statement debit, disposal credit, या फिर disposal debit and income statement credit. Right हो गया. Now I'm going for a T account. सर जी इसका टी अकाउंट भी बनता है, इसी डिस्पोजल का टी अकाउंट होता है, इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है. इंशाल्लाह विल डू द प्रैक्टिस टुडे. डिस्पोजल अकाउंट. सर कितनी एंट्रीज होती हैं डिस्पोजल में? 4. कितनी एंट्रीज होती हैं टोटल? 4. नंबर 1, डिस्पोजल डेबिट. डिस्पोजल डेबिट बिकॉज ऑफ एसेट. डिस्पोजल डेबिट
because of asset. Second entry, disposal credit, disposal credit, disposal credit because of accumulated depreciation. Next, disposal credit, disposal credit, disposal credit because of cash. लास्ट एंट्री, या तो क्रेडिट होगा, या तो क्रेडिट होगा बिकॉज ऑफ लॉस, या तो डेबिट होगा बिकॉज ऑफ गेन। एसेट बेचने से या तो आपको गेन होगा या फिर लॉस होगा। दैट्स ऑल। This is the format of disposal account. Kindly copy it. There are 4 main entries. Number 1, asset. अब देखिए मैं किस तरह बोल रहा हूं। एसेट कितने का था, कितना डेप्रिशिएट हो गया, कितने का बेच दिया। सर कम पैसे आए हैं, लॉस होगा, ज्यादा पैसे आए हैं, गेन होगा। ये कॉन्सेप्ट है इसका। सो इंपॉर्टेंट, सो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पोजल। आप सबको आइडिया हो चुका है सर जी, इन दोनों में से कोई एक एंट्री बनेगी या तो लॉस की या फिर गेन की। एग्जामिनर कैन आस्क, एंड ऑफ कोर्स दे आस्क अस, कभी डबल एंट्रीज मांगता है, कभी टी अकाउंट मांगता है, कभी डबल एंट्रीज मांगता है, कभी टी अकाउंट मांगता है, कभी डबल एंट्रीज मांगता है, कभी टी अकाउंट मांगता है। ऑलराइट, here is a question of disposal account. It's a very simple question to get the understanding of the topic. Disposal. I will be going to make the entries in T account, inshallah ta'ala. A furniture which was bought on 1st January 2014 for 800, it was to be depreciated at 25% using the straight line method. Full year policy, no need to count months. In 2016, we have sold it for 320. So हमें बनाना क्या है सर जी? Only disposal account. Now learn with me the format. Number 1, कितने का एसेट था, कितना डेप्रिशिएट हो गया, कितने का बेच दिया। लॉस हुआ या गेन, लॉस हुआ या गेन। नाउ कैन यू लुक एट द क्वेश्चन, कितने का एसेट था, यानी वो कितनी ओरिजिनल अमाउंट कॉस्ट का था। सर वो 800 का था। ओके, कितना डेप्रिशिएट हो गया, निकालना पड़ेगा। कितने का बेच दिया, 320 का। इज इट एग्रीड टू एवरीवन? ये दो चीजें तो आपको इमीडिएट पता चल जानी चाहिए, था कितने का और बेचा कितने का। एवरीबडी ऑफ यू मस्ट एग्री ऑन इट। द आइटम्स आई सर्कल आउट, now the calculation. सर जी कैलकुलेशन विद द ब्लू। सर मैंने 2014 में खरीदा था, कितने साल डेप्रिशिएट होगा, 2014, 2015, 2016 नहीं होगा, 2016 डेप्रिशिएट नहीं होगा। लुक एट द पॉलिसी, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ सेल। लिख लें बेटा, no depreciation is charged in the year of sale. परचेजिंग ईयर में पूरा चार्ज होगा लेकिन सेलिंग ईयर में चार्ज ही नहीं होगा। दिस इज अ पॉलिसी ऑफ फुल ईयर पॉलिसी। ऑलराइट,
सर कितना डेप्रिशिएट करूंगा सर? 25% है, 25% लगा दूंगा। कितने का एसेट था? 800। कितना आया सर? 200 आएगा। कितने साल तक? 2 सालों तक। सर स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल सेम रहता है। इज इट एग्रीड? दिस इज अ स्ट्रेट लाइन मेथड। पहले साल भी 200 होगा, दूसरे साल भी 200 ही होगा। दिस इज योर स्ट्रेट लाइन मेथड। अब आप बताएं, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है? सर डेबिट ज्यादा है। अगर डेबिट ग्रेटर होगा, अगर डेबिट ग्रेटर होगा, लॉस। लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगर क्रेडिट ग्रेटर होगा, क्रेडिट ग्रेटर होगा तो गेन। अगर क्रेडिट वाली साइड ग्रेटर होगी तो गेन। सर यहाँ डेबिट साइड ज्यादा है, 800 में से 720 माइनस करूंगा, क्या आएगा? क्या आएगा? 80 लॉस। बोले क्या बात है? It's a loss of $80. Are you agreed on it? The important thing is to calculate accumulated depreciation. The important thing is to calculate accumulated depreciation. कितने साल कितने महीने यूज हुआ उसकी टोटल डेप्रिसिएशन चाहिए होती है। और फुल ईयर पॉलिसी में सेलिंग को डेप्रिशिएट नहीं करते। Agreed. Let me look at the entries. सर नंबर 1, कितने का एसेट था ये? 800 का एसेट जा रहा है। डिस्पोजल डेबिट, एसेट क्रेडिट, जो भी एसेट का नाम हो वो आप नाम यूज कर लें। फॉर एग्जांपल फॉर दिस क्वेश्चन इट्स फर्नीचर, सो वी मे यूज फर्नीचर। नेक्स्ट सर ये टोटल डेप्रिशिएट कितना हुआ है? 800। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation debit, disposal credit। एसेट भी जा रहा है, एसेट क्रेडिट होगा। डेप्रिसिएशन जाती है तो डेबिट होती है। नंबर 3 सर कैश आया है मेरे पास। कितने का आया है बेटा कैश? कैश आया है 320 का। कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। उसके बाद सर जी मुझे लॉस हो गया। लॉस की एंट्री, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट, ये लॉस है। इनकम स्टेटमेंट डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, इनकम स्टेटमेंट डेबिट, disposal credit 80। Kindly record these all entries and try to understand there are 4 steps of disposal. Number 1 कितने का एसेट था? Number 2 कितना डिप्रिशिएट हो चुका है अब तक? Number 3 कितने का आपने बेच दिया कैश में? और उसके बाद चौथा ऑप्शन लॉस हुआ या गेन, लॉस हुआ या गेन, लॉस हुआ या गेन। Here we have another practice question on disposal. Have a look at it. We purchased an asset in 2012 for 1200. In 2015, we sold it for 450, and we are applying reducing balance method with full year. Again, you are supposed to open disposal account. कितने का एसेट था, कितना डेप्रिशिएट हो गया, कितने का बेच दिया, लॉस हुआ या गेन, लॉस हुआ या गेन, लॉस हुआ या गेन। सर जी कितने का एसेट था? नाउ लुक एट हियर, 1200 का एसेट था। सर कितना डेप्रिशिएट हुआ? अभी नहीं पता। कितने का बेच दिया सर? 450 का बेच दिया। Is it agreed with everyone? Kindly confirm.
सर जी मुझे 2012 इंक्लूड करूंगा, 13 इंक्लूड करूंगा, 14 इंक्लूड करूंगा, 2015 नहीं लूंगा क्योंकि ईयर ऑफ सेल में डेप्रिशिएट नहीं करते। ये 2015 है, 2015 है जिस ईयर में बेचा हो और फुल ईयर पॉलिसी हो, तो सेलिंग ईयर में डेप्रिशिएट नहीं करते। सर ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। आओ बेटा मैं बताता हूं ना कैसे करना है, इधर आओ मेरे पास, परेशान नहीं हो, इधर आओ। 25% लगाओ 1200 पर, कितना आएगा मारिए कैलकुलेटर्स। 25% of 1200 become 300। सर सेकेंड ईयर के लिए क्या करूंगा? सर मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो ऐसे। जी नहीं पागल, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ये, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ये बेवकूफ। हर साल अलग अलग डेप्रिशिएट होगा क्योंकि माइनस करने के बाद लगता है। 1200 में से 300 माइनस होगा 900। अब लगाइए 900 पे 25%। कैलकुलेटर्स, कैलकुलेटर्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एंड द थर्ड वन 25% ऑफ, माइनस कीजिए इसको, मजीद माइनस कीजिए, इज दैट 675। apply further 25%, it makes it 169, and then you are supposed to take the total of depreciation. Kindly add them. Kindly verify from your calculators. Verify it quickly. Now you got the depreciation, that is 694. The important task is to calculate depreciation. Then excess sign. If debit is higher, it's a loss. If credit is higher, it's a gain. Kindly check it, which side is greater? Which side is greater? Which side is greater? Sir, debit is greater. Now calculate the loss. 56. बोलें क्या बात है? You must agree on each and everything, my dear. Kindly do it. Kindly do it. The fun is the calculation of depreciation. Sometimes it's a straight line method. Sometimes it's a reducing balance method. In reducing balance method, you need to subtract, then apply. Subtract, then apply. Agreed? Now, you are supposed to pass entries. Here's a past paper question in front of you. I'm going to solve it. This is November 2006 question, a very interesting question. Everybody should be very focused when I'm solving this. So John Regan set up a garage and car sales business on 1st September 2004. 1st September 2004 की details मौजूद हैं मेरे पास. Land and building, plant and machinery and loose tools. इन तीन के मुतालिक बात हो रही है. लेकिन रिक्वायरमेंट देखिएगा, explain why John Regan does not depreciate land and stock of motor vehicle. उसके पास लैंड भी है और लैंड कितने की है? 70,000 की है. is not to be depreciated. Why? Start writing. Land
will not depreciate, it appreciates over time because we use building, not the land, and not the land. All right. It increases due to development of infrastructure. वो बढ़ती ही है, कम नहीं होती. इट्स ए नेचुरल एसेट. हाँ, वो एग्रीकल्चर लैंड है जो डेप्रिशिएट होती है. यहाँ तो लैंड एंड बिल्डिंग मतलब वो लैंड की बात हो रही है जिसमें बिल्डिंग बनी हुई है, लाइक योर स्कूल, लाइक रेस्टोरेंट, लाइक बैंक. उसकी हम बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, लैंड यूज नहीं कर रहे हैं. आपने ऐसे देखा होगा आपके घरों में, अगर गुलशन में रहते हैं आप तो गुलशन में, नॉर्थ में देखो होंगे तो नॉर्थ में कि पुराने घर तोड़ तोड़ कर नए बनाए जाते हैं. तो वो पुराने घर टूटते हैं, लैंड दोबारा खरीदनी थोड़ी पड़ती है, लैंड तो वही रहती है. बिल्डिंग डिमोलिश करने के बाद सेम लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनाई जाती है. इज इट एग्रीड? Come on everyone, next part, stock of motor vehicle. Stock is for sale and they are not for use in the business. Is it agreed? Depreciation is made on such items we use. All right. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई फर्नीचर शॉप पे चले जाएं, फर्नीचर शॉप के अंदर अगर वो बेचने वाले फर्नीचर होते हैं तो वो आपको मालूम है बैठने नहीं देता, वो हाथ लगाने भी सही से नहीं देता, लिखा हुआ होता है नॉट फॉर यूज, इट्स फॉर सेल. कुछ फर्नीचर बैठने वाला होगा जो ऑफिस के यूज के लिए होगा, वहां बैठ सकते हैं आप, लेकिन जो बेचने वाला एसेट है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, वो पन्नी चढ़ा के रखा होता है, प्लास्टिक चढ़ा के रखा होता है, रैप करके रखा हुआ होता है, उसका कलर खराब ना हो जाए, उसमें मट्टी ना लग जाए. Are you getting the sense? So they are not for sale. हम क्या चीज सेल करते हैं? स्टॉक. वो हम यूज नहीं करते. और डेप्रिशिएट क्या करते हैं? जो हम यूज करते हैं, जो हम यूज करते हैं वही डेप्रिशिएट करते हैं. Okay, the B1. Explain one reason why John Regan uses the revaluation method to depreciate loose tools. Why they have used the revaluation method for loose tools? Loose tools can be, अब ये suitability पूछ रहा है दोबारा, can be easily broken down, lost or theft or stolen. So we depreciate by taking difference. So we depreciate by taking difference. यानी ओपनिंग और क्लोजिंग वालों को माइनस करके हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं. 2 नंबर. तो देखें, आइडियल आपके पास क्वेश्चन ऐसा ही होगा जिसमें थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स होगा. तो मैं अपने बच्चों को कंप्लीट प्रिपरेशन कराता हूं, प्रैक्टिकल के भी साथ साथ करवाता हूं, थ्योरी भी साथ साथ करवाता हूं. हर चैप्टर सर जेडएम इसी तरह कवर करते हैं. थ्योरी, डबल एंट्री, टी अकाउंट, फॉर्मेट, फॉर्मूलाज, जो कुछ होगा सर कवर कराएंगे.
और टॉपिकल क्वेश्चंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ टॉपिकल पास पेपर भी हम साथ साथ कवर करते हैं. नाउ दे आस्क अस टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. तो सर टॉपिकल पास पेपर साथ साथ कंप्लीट करवाते हैं. Here we have loose tool 5000. Depreciation का formula opening value plus new purchase minus ending value. So what was the opening value? The opening value was 5000. That is a value of 2004. याद करें 2004 का ओपनिंग था. ये ओपनिंग होगा क्योंकि मैं 15 के लिए काम कर रहा हूं. मैं 15 तक पहुंच चुका हूं तो एंडिंग वैल्यू 4000 है. बीच में इसने $1000 का परचेस किया है. कैलकुलेटर्स kindly tell us the depreciation. Calculators. Kindly verify your answers. Now the next part is C part, which requires us to calculate depreciation for the 2 years, 15 and 16. So we have to mention like this: 31st August 2005 and 31st August 2006. We are supposed to calculate depreciation for both the assets. Over here, we have to calculate for 1 year and for 2 years. Calculate the depreciation for the year, that is 2015 ही की निकालनी थी, 5 ही की निकालनी थी. यहाँ 5 और 6 दोनों की निकालनी है. Here we go. We have a building costing 50,000. Apply 4% straight line method. No problem, sir. Apply 4% directly on 50,000. Calculators. Calculators, every one of you, kindly use dollar with answer. Kindly use, do not forget. Examiner says I will lose marks if you don't mention it. Everybody of you, kindly do it. Thank you. You have to solve it with me. कैलकुलेटर रख के बैठा करें ताकि आपको अच्छा समझ आए. देखें किस तरह हम लोग मार्क्स गेन करते जा रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. The next part, plant and machinery. Look at the question. Plant and machinery cost us 60,000 and we have to depreciate 50% using reducing balance method. 60,000 and 50%. 50% on 60,000. The first year depreciation should be 30,000. And for the next year, everybody knows you have to subtract this minus this. It makes it 30,000 and we need to apply 50%. It makes it $15,000. Is it agreed to all? Kindly verify these two methods. Straight line method, apply straight. The answer will remain same. Whereas in reducing balance method, amount of depreciation is reduced each year. Amount of depreciation is reduced each year.
Okay, let me move towards the next part. Here we have the disposal. Yes sir, यही तो हमें करना था. अब यही full year policy है हमारी. Selling year में depreciate. Year our depreciation is in the year of disposal. We have charged a full year depreciation in the year of disposal. Year of sale में भी depreciation करना था इसको. And he sold the plant and machinery for 12,000 during 2006. Prepare his disposal account. Prepare his disposal account. सर जी अगेन 4 स्टेप्स. नंबर 1, कितने का एसेट था? मैं नाम लिख रहा हूं, प्लांट एंड इक्विपमेंट. कितने का एसेट था? कितना डेप्रिशिएट हो गया? कितने का बेच दिया? गेन हुआ या लॉस? सर ये कैसे आया? सर ये ऐसे आया. टोटल डेप्रिसिएशन. Total depreciation of the asset which we are going to dispose. अगर डेबिट ज्यादा है तो लॉस, अगर क्रेडिट ज्यादा है तो गेन. कौन बता रहा है? कौन बता रहा है सर? कौन बता रहा है? डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है? सर डेबिट कितनी अमाउंट से ज्यादा है? सर 3000 से. क्या होगा ये? सर लॉस. Agreed. ये हमने कंप्लीट गोज टू इनकम स्टेटमेंट. ये हमने कंप्लीट 20 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और पूरे 20 के 20 मार्क का क्वेश्चन अवेल किया है. सो काइंडली वेरीफाई इट. इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. इट्स मी सर जिशान मलिक आपके साथ मौजूद हैं. हर क्वेश्चन इंशाल्लाह इसी तरह करेंगे, हर टॉपिक इसी तरह प्रिपेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला. लुक एट द कैलकुलेशन. 2 3 4 6 5. तो ये 14 मार्क की कैलकुलेशंस थी और 6 मार्क की पिछले पेज पर इसने थ्योरी मांगी थी. लुक, 6 मार्क्स फॉर थ्योरी. 2 2 एंड 2. तो एग्जामिनर इस तरह अपने क्वेश्चन सेट करता है मार्क्स बनाने के लिए. All right, my dears, kindly copy it and verify the answer. See you again with the new video where I can give you more concepts and try to make it more clear. Thank you.